परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग अक्सर रहते हैं खामोश, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होती, और आज उसी बात को बहुत सारे लोग साकार कर रहे हैं। जब आप में टैलेंट होता है तो देश दुनिया की कोई सीमा आपके लिए मायने नहीं रखती है। यही साबित करता है वडोदरा का सोहम, एक स्पेशल, एक दिव्यांग बच्चा, लेकिन आज इंटरनेशनल स्तर पर खेलने जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ है सोहम राजपूत की। સોહમ ધર્મેશભાઈ રાજપૂત. સોહમ રાજપૂત. સોહમ, ક્યાં જવાનું છે રમવા માટે? શાના માટે સિલેક્શન થયું છે? હું એથ્લેટિક્સ છું. 400 મીટર રિલે, 800 મીટર રેસ. હું મેં બોલિંગમાં સિલેક્ટ થયો છું. જર્મની જવાનો છું. કેટલી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે જર્મની બર્લિન જવાની? સવારે અને સાંજે. સવારે માજરપુર સ્ટેડિયમ, સાંજે અકોટા સ્ટેડિયમ. સવારે કેટલા વાગે ઉઠી જવું પડે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે? 5:30 ઉઠું જવું પડે. પછી હું વોર્મવર્ક, એક્સરસાઇઝ. કોણ કરાવે છે આ બધું? લક્ષ્મીસિંહ રાઠોડ સર અને વિકાસ અગ્રવાલ સર. લક્ષ્મણ સર અને વિકાસ સર મહેનત કરાવે છે. કેવી રીતે મહેનત કરાવે? દોડવું પડશે, એવું બધું પ્રેક્ટિસ કરાવે? એવું ગમે બધું? હા. અને ખાવાનું શું હોય? ખાવાનું ધ્યાન રાખવું પડે, કારણ કે આપણે ઇન્ટરનેશનલ સ્તર પર રમવા જવાનું છે. હા. પ્રોટીન દૂધ લેવું પડે, પછી મગ ખાવા પડે. પ્રોટીન દૂધ બધું લેવું પડે. કોણ આવું બધું કોણ તૈયાર કરી આપે? મોમ. ઘરમાં કોણ કોણ છે? મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ, દાદી, ફોઈ. બધા જ છે. હા. અને કોણ સૌથી વધારે ગમે એમાંથી? મમ્મી. મમ્મી. શું નામ છે મમ્મીનું? દર્શનાબેન રાજપૂત. મમ્મી શું હેલ્પ કરે? કંઈ પણ જોઈતું હોય તો પછી મમ્મીને કહેવાનું કે મમ્મી આ જોઈએ છે મને. કેવી રીતે મમ્મી હેલ્પ કરે? મમ્મીને કેટલો પ્રેમ કરો છો? બહુ બધો. હા. અને મમ્મી તમને કેટલો પ્રેમ કરે? બહુ બધો પ્રેમ કરે. શું લાગે, કોનો સપોર્ટ છે આટલો બધો કે આટલું આગળ વધવા માટે હવે આગળ જઈ રહ્યા છો? ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર રમવાનું છે. ડર લાગે છે કે મજા આવે છે? આમ એક્સાઇટમેન્ટ છે? મજા. હા. એક્સાઇટેડ? હા. ક્યારે જવાનું છે બર્લિન? 11 તારીખે જવાનું છે. 11 તારીખે D20 ફ્લાઇટ છે. ફ્લાઇટ એટલે વિમાનમાં જવાનું? હા, વિમાનમાં જવાનું છે. પહેલી વાર? પહેલી વાર. એની પણ એક્સાઇટમેન્ટ હશે? હા. હા. કેવું લાગશે જ્યારે વિમાનમાં જઈશું ત્યારે? સારું લાગશે. સારું લાગશે. હા. બર્લિનમાં જઈને શું અચીવ કરવાનો છે? ત્યાં શું કરવું છે? શું વિચાર્યું છે કે મારે શું લઈને આવવાનું છે? ગોલ્ડ મેડલ લઈને આવવાનું છે. ગોલ્ડ मेडल लेना। हाँ. गोल्ड मेडल, यही सपना है सोहम का। आप सोचिए, एक बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड होता है, नॉर्मल बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हमें काफ़ी दिक्कतें आती है, और जब बच्चे स्पेशल हो तो उनके कोचेस, उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, सबको एक ख़ास मुहिम शुरू करनी पड़ती है, एक ख़ास जंग लड़नी पड़ती है उन बच्चों को आगे ले जाने के लिए। और ये जंग लड़ी है पूरे राजपूत परिवार ने, ना सिर्फ फैमिली ने, उनके कोच, उनके टीचर्स, ये सारे लोगों ने मिलकर आज सोहम को उस जगह पहुंचा दिया है कि वो इंटरनेशनल स्तर पर स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम्स में हिस्सा लेने जा रहा है। एथलेटिक्स की जो रेसेस होती है उसमें वडोदरा के सोहम राजपूत का चयन हुआ है, और सोहम राजपूत के पीछे कड़ी मेहनत कर रही है पूरी फैमिली और साथ ही उनके कोच। सोहम राजपूत, एक खास बच्चा
जिसे अब इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाना है। जब एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचता है, उसकी मेहनत तो होती ही है, लेकिन परिवार की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग में भी काफ़ी दिक्कतें पेरेंट्स को आती ही है, और जब पता चले कि बच्चा स्पेशल है तो क्या कहानी होती है, ये हम राजपूत फैमिली से जानेंगे। और मेरे साथ मॉम सोहम ने कहा था उसे मॉम बहुत पसंद है, और मॉम सोहम की हमारे साथ है दर्शना राजपूत। दर्शना जी, क्या बताएंगे सोहम के बारे में? सबसे पहले बचपन से शुरू कीजिए, कहाँ से शुरू हुई ये पूरी कहानी? સોહમ પહેલાં નાનો હતો ત્યારથી જ એને રમતગમતમાં ખૂબ જ રસ હતો. તે રમવાની સાથે સાથે ટીવી જોવાનું, સાથે સાથે બધા ફેસ્ટિવલને સેલિબ્રેટ કરવાનું એનો પહેલેથી ખૂબ જ રસ હતો. એના માટે એને તહેવારો આવે પહેલાં તો એનું એન્જોયમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય. દરેક તહેવાર એ ફૂલ એન્જોયમેન્ટથી સેલિબ્રેટ કરતો હતો. સોહમ ફર્સ્ટ ચાઇલ્ડ છે, ક્યારે તમને ખબર પડી કે સોહમ કંઈક વિશેષ છે, કંઈક અલગ છે? જ્યારે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં આવ્યો ત્યારે એને ટ્યુશનમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે ટ્યુશનના ટીચરે કેટલી વખત કહ્યું કે આને ગમે તેટલી વખત રિપીટ કરાવે તો પણ એને યાદ નથી રહેતું, તો તમે એને સ્પેશિયલ કાઉન્સેલિંગ કરાવી જુઓ કે એને શું પ્રોબ્લેમ છે કે જેથી રિપીટ કરાવે છતાં પણ એને યાદ નથી રહેતું. તો અમે એને કાઉન્સેલિંગ કરાવ્યું તો અમને ખબર પડી કે એને સ્લો લર્નર છે, અને સાથે સાથે પછી એને એ રીતે કાઉન્સેલિંગ ચાલુ કર્યું. કેટલું મુશ્કેલ હતું એ જે ફેઝ હોય આખો એ સમજવાનું કે આપણું બાળક છે કંઈક ખાસ છે, કંઈક અલગ છે, કંઈક વિશેષ છે? કેવી રીતે તમે એ ડાયજેસ્ટ કર્યું અને પછી અપબ્રિંગિંગ ત્યાંથી અલગ રીતે શરૂ કરી? એકચ્યુઅલી થોડું અઘરું તો લાગ્યું, પણ એક્સેપ્ટ કરવા સિવાય તો કોઈ ઉપાય જ ના હોય આપણી પાસે, કારણ કે આપણું જ બાળક છે, એને સ્વીકારવાનું તો છે જ. એટલે એની જે કેપેસિટી છે, એને જે નબળાઈ છે, એને તાકાત બનાવીને એને આગળ વધારવા માટે અમે પાછળથી પુશઅપ કરતા રહ્યા કે કઈ રીતે એને તું યાદ રાખી શકે છે વસ્તુને. પણ અને એ ભણવામાં નથી એનું માઇન્ડ ચાલતું, તો એને કઈ રીતે વાળી શકીએ અમે, એને કેવી રીતે મોટિવેટ કરી શકીએ કે આગળ એ એનું પોતાની રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈને પોતાની રીતે આખું જીવન ગુજારી શકે. પછી તમને ક્યારે ખબર પડી કે આપણે સ્પોર્ટ્સ તરફ લઈ જઈએ સોહમને? કારણ કે સ્લો લર્નર બાળક હોય ત્યારે આપણે એને ભણાવવા પાછળ જ કોન્સન્ટ્રેટ કરતા હોય કે થોડુંક સારું ભણી લે, પછી તમને ક્યારે લાગ્યું કે ના, કંઈક બીજે હવે એને વાળવાની જરૂર છે? ના, એકચ્યુઅલી અમે પહેલેથી પ્રેશરાઇઝ તો એને ભણવા બાબતે બિલકુલ નથી કર્યો. એ ખાલી એટલું માર્કેટમાં નીકળે કે કાં તો બહાર નીકળે તો એટલું કોઈ એને એવી રીતે પાછળ ના પાડી શકે કે ભાઈ એને આવડતું નથી, એને વાંચતા લખતા નથી આવડતું. તો એના માટે અમે લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો કે તું થોડુંક તો બેઝિક તો કરી લે કે જેથી વાંચી લખી શકે. એ બસ એના માટે પ્રયત્ન કર્યા છે. બાકી એવું નથી કે તું કોઈ ડિગ્રી લે કે એના માટે કોઈ દિવસ કોશિશ નથી કર્યો મેં. અને હા, એને પહેલેથી રમતગમતમાં તો પહેલેથી રસ છે જ, તો અમે એનો રસ અને સાથે લક્ષ્મણસિંહ રાઠોડ એમના અપ્રોચથી અમને ખબર પડી કે ભાઈ હા, એની અંદર આ ટેલેન્ટ છે કે એ કરી શકે છે રનિંગમાં. તો ધીમે ધીમે એમને પણ ગાઈડ કર્યું, અમે પણ એને પાછળ ટાઈમ આપ્યો, અને ત્યાર પછી આ પદ પર એ પહોંચી ગયો છે. હવે બાળકોને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે લાવવાના, એમને રમાડવાના, એમનું જે ડાયટ છે એ બધું જ ધ્યાન રાખવાનું, એ કેવી રીતે મેનેજ કરો છો? એ સવારમાં મારે થોડુંક મહેનત કરવી પડે છે કે એના માટે વહેલું ઉઠીને એના માટે જે કંઈ જરૂરી છે તે બધું રેડી એ ઉઠે એની સાથે સાથે મારે એને આટલા ટાઈમમાં આટલી વસ્તુ કરીને આપી દેવાની. એ જે દોડીને આવે પછી એના પછી એને કઈ વસ્તુ જરૂર છે, પ્રોટીન લિક્વિડ જરૂર છે કે પછી પ્રોટીન સ્પ્રાઉટની જરૂર છે, એ પ્રમાણે એને જરૂર હોય એ પ્રમાણેના મિનરલ્સ આપ્યા છે. અને સાથે સાથે એને જ્યારે લાગે ત્યારે કહેતી રહું છું કે પાણીનું વધારે પ્રમાણ કર, પાણી વધારે પી. એ એના ડાયટને એને પૂરું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. કેટલું પ્રાઉડ ફીલ કરે એક માં જ્યારે બાળક ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર રમવા જતું હોય? પ્રાઉડ તો એક જાતનું આપણું ડ્રીમ જ પૂરું કરી રહ્યો છે છોકરો, કે ભાઈ હા, આપણે આ લેવલ પર આવ્યા પછી એક મુકામ છે કે આપણે એને જોઈએ, અને એ પણ ટીવીમાં અને આખા વર્લ્ડમાં એ ફર્સ્ટ આવે એવી આશા સાથે આપણે જોતા હોય. એટલે ઘણો આનંદ થઈ રહ્યો છે કે બસ गोल्ड मेडल लेना आवे. हर एक बात पूरी हो रही है गोल्ड मेडल पर, सपना यही है, गोल यही है. गोल पूरा होता है कि नहीं वो आगे की बात है, लेकिन
जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि जब सोहम जैसे बच्चों को ट्रेन करना होता है, हर एक व्यक्ति को अपने अपने लेवल पर मेहनत करनी होती है। एक पिता जो होते हैं वो हमेशा बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश की और उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग, उनका जो भी इंटरेस्ट है उससे कैरी करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और धर्मेश भाई ने क्या रोल प्ले किया है वो भी हम जानेंगे। धर्मेश भाई, बेटा आपका इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? मैडम प्राउड तो फील हो रहा है अभी, क्योंकि आज ऐसा जो स्पेशल चाइल्ड है, और स्पेशल चाइल्ड जितना हो सके उतना आगे बढ़ेगा तो हमको भी अच्छा लग रहा है। और बेटर है कि वो हमारे लिए तो ठीक है, मगर देश के लिए खेलेगा वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं हम लोग। क्या चैलेंजेस आई? अब सोहम 17-18 साल का है करीबन, इतने 17-18 साल में उसे बड़ा करने में, उसे समझाने में, उसे वो सारा मेन स्ट्रीम में लाने में कितनी प्रॉब्लम्स आई, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक्चुअल मैडम जैसे नॉर्मल बच्चों को होता है उसको ये समझाते हैं तो वो समझता है, उसको जो अब ये जो स्पेशल चाइल्ड है तो उसको समझाने में थोड़ा दिक्कत लगता है, मगर वो समझता है तो उसको समझा के फिर बाद में उसको आगे ले जाते हैं। थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको कि आगे जाके वो समझ पाए पूरा। बर्लिन जा रहा है, आगे क्या गोल है, क्या करवाना चाहते हैं आप सोहम से, कि सोहम को और आगे कहाँ देखते हैं? हम और आगे देश के लिए कुछ और भी आगे कोई गेम्स में जाए और कुछ बढ़े, वो अप्रोच करना चाहते हैं और उसका एक मुकाम तय करना चाहते हैं। वो मुकाम पे वो पहुँचे, वो खुद अपना कुछ कर पाए, वो बेटर फील कर पाए और बेटर कुछ आगे काम कर पाए। इसके लिए कुछ न कुछ हम मेहनत करते रहेंगे मैम। सोहम के बाद आपका एक दूसरा बेटा भी है, देवराज और सोहम, क्या फ़र्क है दोनों बच्चों में, और दोनों की अपब्रिंगिंग में कितना फ़र्क महसूस किया आपने, कि किस तरह से अलग अलग बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है? एक्चुअली मैम देखने जाए तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि दोनों एक ही लेवल पे हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको अलग और ये, हम दोनों को एक ही लाइन पे ट्रैक पे ले जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कैसी है दोनों की बॉन्डिंग, कैसी है? दोनों की बॉन्डिंग बहुत सही है, मगर हर घर में ये होता ही है कभी। दोनों भाइयों में बच्चों में लड़ाई तो होती है, वो तो रहती है छोटे और यस यस यस, ये तो खैर मज़ा है परिवार का, बच्चों का जी। और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एक भाई जो दोनों अपने लिए जो अलग अलग जो होते हैं, मान लो कि इसको स्कूल से कुछ मिलता है स्पेशल तो वो अपने भाई के लिए लेके आता है, ये स्कूल से कुछ मिलता है वो अपने भाई के लिए लेके आता है। यानी कि बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है मैम। मैंने देखा है जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं बहुत प्यार करते हैं। सोहम भी क्या बहुत प्यार करता है फैमिली वालों से, अटैच्ड है कि या कम अटैच्ड है, या अटैच होते हैं ये बच्चे या अटैच नहीं होते हैं? सोहम किस कैटेगरी में है? सोहम का अटैचमेंट फैमिली से ज़्यादा रहता है, और स्पेशली इसकी मॉम है, इसकी ग्रैंड मदर है, उसके साथ में ज़्यादा है मैम। देवराज भाई इंटरनेशनल लेवल पर बर्लिन रमवा જાય છે, કંઈ કહેવું છે એના માટે? બેસ્ટ ઓફ લક કેવું છે ભાઈને? મારો ભાઈ જીતીને આવે મેં એવું ઈચ્છું છું. કઈ સ્કૂલમાં ભણો છો તમે? રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં? 3rd. ભાઈ સાથે શું લડાઈ થાય છે? થોડી થાય. સોહમ મારે છે? હા, થોડું અને હવે ભાઈ જવાનો છે બહાર ઇન્ટરનેશનલ, તો તમને એવું થાય છે કે યાર મારે પણ હવે જવું જ પડશે? હા, मैं फुटबॉलમાં જવાનું છું. आप देखिए एक पूरा परिवार, हंसता खेलता सा परिवार, और शायद सालों पहले उन्हें थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आज ये परिवार अपने आप को इतना प्राउड महसूस कर रहा है। आप देख पा रहे हैं सभी के चेहरे पर, उनके माता पिता ने कहा कि बहुत प्राउड होता है जब बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाए, और क्यों ना हो मेहनत आज बोल रही है सोहम की। सोहम के पीछे जो माता पिता ने मेहनत की है वो बोल रही है, और एक छोटे से बच्चे देवराज को भी इसी से प्रेरणा मिल रही है कि मुझे भी कहीं ना कहीं अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है।
साथ मिलकर किया हुआ एक एफर्ट आज रंग लाया है और न सिर्फ परिवार की मेहनत, कोच की मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को जानकर उसे, क्योंकि स्पेशल बच्चा है, उसके मूड के हिसाब से उसकी शरीर की जो कमियां हैं उससे कैसे हम ताकत में बदले, उस मोटो के साथ आगे बढ़ना होता है। और ये बखूबी किया है RK स्पोर्ट्स एकेडमी के लक्ष्मण सर ने। लक्ष्मण सर भी मेरे साथ हैं। सर, सोहम इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है, एज अ कोच क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी खुशी हो रही है मैम, क्योंकि एक कोच के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो कि उसका स्टूडेंट एक इंटरनेशनल लेवल पे जाए, वो हमारा बड़ा कामयाबी का एक पद होता है कि हम लोग एक ऊंचाई जो हमको हासिल करनी थी वो कर चुके हैं, हमारा ड्रीम पूरा हुआ। सर, ये जो स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये एक स्पेशल ओलंपिक जो है वो एक संस्था है जो मतलब रमत गमत के लिए, मतलब जो खेल कूद के लिए होती है, जिसमें क्या ऐसे बच्चे जो हैं जिनके लिए शारीरिक विकास हो, इनकी क्षमताओं को बाहर लेके आए। और इस जो समर गेम और एक विंटर गेम दो होते हैं जो हर 4 साल में एक बार आते हैं, जिसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल, इसमें से बच्चों का परफॉर्मेंस देखा जाता है और उसमें से सिलेक्ट हो जाते हैं। और जैसे यहाँ से गुजरात से जो सिलेक्ट हुआ तो वो सेम प्रोसेस रहता है। फिर उसके बाद जो है ऑल ओवर इंडिया के सिलेक्शन होते हैं। उस सिलेक्शन के बाद में उनमें कैपेबिलिटी देखी जाती है कि भाई किस गेम के अंदर इसको लिया जाए आगे, उसके हिसाब से सिलेक्शन होते हैं। और फिर वो इनके डिफरेंट गेम होते हैं। जैसे ये एथलेटिक्स में जा रहा है अभी, तो एथलेटिक्स में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे अभी इसको जैसे 4x400 रिले और 800, तो अभी ये जो है कंपटीशन करने जा रहा है 800 में। अभी हमारा मतलब ड्रीम ये है कि कम से कम ये 800 में गोल्ड मेडल लेके आए इंडिया लेवल में, तो इंडिया का नाम करे, तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। और इसमें सभी गेम होते हैं। जैसे समर गेम के अंदर बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ये और यूनिफाइड स्पोर्ट्स के साथ भी ये है जिसमें इन बच्चों को साथ में किया जाता है, वो भी अभी शुरू किया है, तो वो भी जा रहे हैं, जिसमें नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा दोनों साथ में करते हैं। सर, सोहम तो स्पेशल है ही और आप स्पेशल एजुकेटर है, आप ऐसे ही बच्चों को ट्रेन करते हैं। क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चों से ये बच्चे थोड़े से अलग ज़रूर होते हैं? चुनौती तो स्टार्टिंग में तो होती है। जैसे क्या होता है कि इनको एक स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से इनको समझने का वो एक हमें पता चला है, ऑब्जर्वेशन करते हैं इनके किस मोमेंट पे ये मतलब हाइपर होते हैं, किस मोमेंट पे ये स्लो होते हैं, कब ये रिस्पांस देंगे कब नहीं देंगे, उसके हिसाब से हम अपने आप को उनके हिसाब से हमको कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जैसे एक नॉर्मल कोच है, जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं, तो उसमें कैसा है कि हम लोग कोई भी कमांड दे सकते हैं, उनको गुस्सा भी कर सकते हैं, पर यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ इनको सिर्फ प्यार से मनाया जाता है, या फिर इनको कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है कि भाई तुम ऐसा ये करोगे तो तुम्हें ये मिलने वाला है, वहाँ होगा, ऐसा होगा। तो फिर इनके और दूसरी चीज़ क्या है, नॉर्मल बच्चों में, मैं पहले नॉर्मल बच्चों में भी स्पोर्ट टीचर रह चुका हूँ, पर मैंने इन बच्चों में और नॉर्मल में इतना फ़र्क देखा है कि उनको कहने के बावजूद भी वो जो मन में आएगा वही करेंगे। पर ये क्या है कि टोटली डिवोटेड हो जाते हैं। इन्होंने एक बार सोच लिया कि मुझे अगर मेरे कोच ने कहा है कि मुझे ये करना है, मीन्स करना है, फिर ये देखते नहीं, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और 100% जो एनर्जी लगाता है उसका रिजल्ट आता है। सोहम के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? कितने सालों से आप ट्रेन कर रहे हैं और आज अब उस मुकाम पर सोहम को आपने पहुंचा दिया है? सोहम को मैं पिछले 5-6 साल से मतलब ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जैसे खेल महाकुंभ हमारे होते हैं तो उसमें ये दौड़ते रहते थे, तो वहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन चलता रहता है कि कौन बच्चा किस फील्ड में है, क्या है, तो हम वहीं से अपना मतलब एक बच्चे को बाहर निकालते हैं और फिर वो ओलंपिक के लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि इस बच्चे को 4 साल कम से कम अगर एक गेम में किया जाए तो ये रिजल्ट ला सकता है। तो वहाँ पे इसको जैसे रनिंग में हमने रखा था स्टार्टिंग में, तो इसका काफ़ी रनिंग जैसे थी, तो जैसे मैं एथलेटिक्स ही खेला हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर अगर थोड़ा सा कुछ मेहनत की जाए तो ये रिजल्ट ला सकता है। तो पिछले 4 साल से फिर मैंने इसका एक टारगेट ले लिया कि इसको कैसे भी करके इस बार समर गेम के अंदर इंटरनेशनल बड़ौदा से ले जाना है, क्योंकि बड़ौदा के अंदर इंटरनेशनल अभी तक काफ़ी टाइम हो गया कि कोई भी इंटरनेशनल एथलेटिक्स में अभी तक नहीं गया है, बाकी गेम में गए हैं कुछ बच्चे हैं। तो वो एक टारगेट था। फिर जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैनेजर का पोस्ट मिला तो फिर एक जवाबदारी मिल गई कि भाई अब तो कुछ करके दिखाना है, और बड़ौदा का भी नाम हो, गुजरात का नाम हो। तो फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू किया हमने। अकोटा स्टेडियम पे हमारा जो है एकेडमी चलता है, वहाँ पे हमने कच्चे में दौड़ाना शुरू किया। उसके बाद हमने परमिशन ली कि भाई अब इसको ट्रैक दिखाना ज़रूरी है, हमें भी टाइमिंग पता चले। तो फिर हम लोग जब इस ट्रैक पे आए तो आज अभी जो है फ़िलहाल है वो 3 मिनट में ये 800 मीटर का रनिंग करता है अभी भी। और भी हमारा ये है कि कम से कम ये 2 या 2.5 में आए। क्या गोल दिया है सोहम को? आखिरी सवाल। गोल यही है कि इसको गोल्ड लेके आए, वही हम लोग कोशिश करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और ये भी बोलता है कि मैं गोल्ड लेके आऊँगा, तो वो खुशी होती है मैडम।
सोहम को यही सपना दिखाया गया है, यही गोल दिया गया है कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं लाना है। सोहम के साथ बहुत सारी बेस्ट विशेष है। तैयारियां मायने रखती हैं। गोल्ड मेडल ज़रूर आएगा जब इस तरह की मेहनत हो, जब इस तरह का जज्बा हो। और उनके साथ जा रहे हैं विकास अग्रवाल सर, जो बर्लिन जा रहे हैं सोहम को लेकर एज अ कोच। SVIT के स्पोर्ट्स डायरेक्टर है और सोहम के पीछे वो भी मेहनत करते जा रहे हैं। विकास सर और VNM बहुत सालों पुराना रिश्ता है, और क्योंकि VNM का रिश्ता हमेशा स्पोर्ट्स से रहा है। AD व्यास सर को कौन नहीं जानता, और AD व्यास सर का जो स्पोर्ट्स का सिलसिला था वो विकास सर ने हमेशा हमारे साथ मिलकर बरकरार रखा है। विकास सर आज एक बच्चे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं, उनके लिए ये खुशी क्या मायने रखती है, ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। सर, एक बच्चे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर, और वो भी आपने हमेशा स्पेशल बच्चों के लिए काम करना आपको ज़्यादा पसंद आया है। AD व्यास सर के साथ मिलकर भी मैंने देखा है कि आपने हमेशा दिव्यांग बच्चों को, स्पेशल बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और आज एक बच्चे को लेकर आप इंटरनेशनल लेवल जा रहे हैं। हाँ, AD व्यास मेरे गुरु थे। इस फील्ड में स्पेशल बच्चों के साथ काम करने के लिए वही मुझे प्रोत्साहन दिया था, वही मुझे इस फील्ड में लेके आए थे। उससे पहले मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था इन बच्चों के बारे में, और उनका सपना था कि हमारे बड़ौदा से बच्चे इंटरनेशनल खेलें और कुछ नाम करें बड़ौदा का। स्पेशल बच्चों के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे काम करने के लिए, और उनके साथ रह रह के वही आदत मेरे अंदर भी आ गई है। आज भी बड़ौदा में कहीं भी किसी स्पेशल बच्चे के लिए काम होता है तो हम लोग खुद दौड़ के जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यास सर जहाँ भी हैं वहाँ से वो देख रहे होंगे कि आज बड़ौदा का एक स्पेशल बच्चा सोहम राजपूत एथलेटिक्स के लिए सिलेक्ट हुआ है और इंटरनेशनल खेलने जर्मनी जा रहा है। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं सोहम के साथ हैं, और हमको लगता है कि व्यास सर का सपना भी आज पूरा हुआ होगा। सर, किस तरह की मेहनत की गई है, क्योंकि नेशनल लेवल पर खेलना अलग चीज़ होती है और इंटरनेशनल लेवल पर खेलना अलग चीज़ है। आप लोगों ने किस तरह की प्रिपरेशन की है और सोहम को किस तरह की ट्रेनिंग दी है? स्पेशली देखा जाए तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग रहा है वो खेल महाकुंभ का रहा है। खेल महाकुंभ के ज़रिए ये बच्चे आगे आए हैं, पेरेंट्स आगे आए हैं, बच्चों को खेलने के लिए भेजने लगे हैं। पहले ऐसा माहौल नहीं था। पहले बच्चों को बंदिशों में रखा जाता था कि नहीं, ये हमारा स्पेशल बच्चा है, ये बाहर नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन अब पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आई है, वो लोग भी बच्चों को बाहर लेके आ रहे हैं। खेल महाकुंभ के ज़रिए जो रिजल्ट आया है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और स्पेशल ओलंपिक ऐसा फेयर ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ मेहनत करने वाले को हमेशा फल मिलता है, कामयाबी मिलती है उसको। तो वो खेल महाकुंभ के ज़रिए जो रिज़ल्ट आया है स्टेट लेवल का, उसमें से इनको पसंद करके नेशनल लेवल के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे भी इनका बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है, और उसके बाद इनका इंटरनेशनल का चांस मिलता है। और हकीकत में तो यहाँ देखा जाए तो सोहम के पीछे बहुत मेहनत की है पिछले 4-5 साल से। ये कोरोना की वजह से थोड़ा हमारा डाउनफॉल चल रहा था, उस समय में उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो उसके बाद भी जैसे ही कोरोना हटा और फिर से हमने ग्राउंड पे आए हैं हम लोग, तो उसके बाद बड़ौदा के जो हमारे कोच थे लक्ष्मण सर, उन्होंने भी इसके साथ काफ़ी मेहनत की है। और इसकी स्पेशल प्रैक्टिस हम लोग जनरली ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करा रहे थे। अभी हमको मांझलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मिला है, यहाँ पे ट्रैक पे ही अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहा है। इसको और ज़्यादा नॉलेज आई है यहाँ ट्रैक पे प्रैक्टिस करके कि मेरे को कौन सी लाइन में दौड़ना है, क्या करना है। और हकीकत में देखा जाए तो 400 मीटर परफेक्ट यहाँ ये दौड़ पा रहा है। नहीं तो हम इसको अलग अलग ग्राउंडों पे दौड़ा रहे थे तो वहाँ उसका 400 मीटर परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ ये 400 मीटर रिले की भी प्रैक्टिस कर रहा है और 800 मीटर की भी प्रैक्टिस कर रहा है। और स्पेशल डाइट के लिए उनके पेरेंट्स से भी बात हुई है, पेरेंट्स भी अच्छी डाइट दे रहे हैं। और जो छोटी छोटी टेक्निकल इसकी रनिंग में प्रॉब्लम है वो हम डे टू डे देखते जा रहे हैं। और कोचिज़ की भी हम लोग यहाँ जो एथलेटिक्स के कोच हैं बड़ौदा के, बड़ौदा एसोसिएशंस वाले हैं एथलेटिक्स के, हम उनकी भी मदद ले रहे हैं। और वो भी हमको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं कि आज एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो हम बिल्कुल भी मतलब उसमें लूप फॉल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि वो स्पेशल बच्चा है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कराएं और वो नेशनल में, इंटरनेशनल में मेडल मार के आए। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। जो लोग दिव्यांग है, स्पेशल है, कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या कम समझते हैं, घर में बैठते हैं, कुछ उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो बाहर नहीं आ पाती, या फिर पेरेंट्स सही सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन स्पेशल लोगों के लिए? हकीकत में देखा जाए तो इन बच्चों को हमसे ज़्यादा नॉलेज है। ये और रेगुलर बच्चे के साथ हम लोग जो मेहनत करते हैं उससे कम मेहनत में ये बच्चे हमको रिज़ल्ट दे रहे हैं। हाँ, ठीक है कि हमको इनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, स्पेशल प्रैक्टिस के साथ स्पेशल कोचिंग देनी पड़ती है इनको, थोड़ी मेहनत हमारी होती है, लेकिन रिज़ल्ट हमारा ज़्यादा आता है।
और मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आप अगर आपके घर में भगवान ने स्पेशल बच्चा दिया है तो आप उसको बंदिशों में मत रखो, उसको बाहर आने दो। उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, वो बाहर आके उसको वो कैपेबिलिटी दिखाने का मौका दो। अगर आज एक बच्चा हमारा जा रहा है तो हम चाहेंगे कि अगले स्पेशल ओलंपिक में, अगला जो इंटरनेशनल ओलंपिक होगा स्पेशल बच्चों का, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे 4 से 5 बच्चे खेल के आएँ। बड़ा गोल लेकर चल रहे हैं और मुझे पता है व्यास सर जहाँ से देख रहे होंगे ज़रूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनका हमेशा से यही उनकी कोशिश रही है, उनकी ये हमेशा एफर्ट्स रहे हैं कि ये बच्चे हैं नेशनल पर जाएं, इंटरनेशनल पर जाएं। और आज वडोदरा का जब एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर जर्मनी एथलेटिक्स में स्पेशल ओलंपिक्स में खेलने जा रहा है, तब वडोदरा शहर के लिए हमेशा ये गौरव की बात है। वडोदरा शहर ने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन दिए हैं और सोहम राजपूत नाम का एक इंटरनेशनल स्टार भी अब वडोदरा शहर देने जा रहा है। वीएनएम के ज़रिए ये पूरी बातचीत आप तक पहुंच रही थी। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ही बातें आप तक पहुँचती है जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी है, सीधे सीधे आप लोगों हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें बहुत इंस्पायरिंग है। सो हमको देखकर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं कि अगर ये कर सकता है तो हर एक बच्चा कर ही सकता है। बस उसमें वो कैपेबिलिटीज़ जगाने की हमें ज़रूरत है, एक बिलीव हमें उसमें जगाने की ज़रूरत है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को आप देख सकते हैं। देखते रहिए, हमेशा जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। स्मार्टफोन आजकल वाकई में स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। आप कहाँ जाते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, स्मार्टफोन में हर एक वो चीज़ रिकॉर्ड होती है। मैनी ऑफ द टाइम्स मेरा फ़ोन रात को 9:30-10 बजे मुझे ये मैसेज कर देता है, जावा स्मार्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है कि यू आर टू टायर्ड एंड आपको कुछ आराम करना चाहिए। आप सोच सकते हैं आप दिन भर क्या कर रहे हैं, ये इसी स्मार्टफोन में रिकॉर्ड होता है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस हो रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं से लेकर
हर चीज़ स्मार्टफोन के पास। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कुछ कीवर्ड्स टाइप कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो उसी रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आती है। अगर आपने एक साड़ी का एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो आपको सारी एडवर्टाइजमेंट साड़ियों के दिखाए जाते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हैं क्योंकि हर उम्र के लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चे, कोरोना में तो हमने छोटे छोटे बच्चों को, केजी क्लास के बच्चों को भी मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया है क्योंकि अब उसी में पढ़ाई होती है। स्मार्टफोन से बचना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है उसके बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं। इसी पर एक रिसर्च किया गया है वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन विभाग की प्रोफेसर कृतिका भाटे ने एक रिसर्च किया है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल लड़कियां खासकर क्या करती हैं, उसमें कैसे करती हैं और कितना अवेयर हैं स्मार्टफोन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। डॉक्टर कृतिका भाटे से मैं बात करूंगी और जानूंगी कि आखिरकार स्मार्टफोन के ऊपर उन्होंने जो रिसर्च किया है खासकर गर्ल्स के ऊपर वो क्या कहता है। प्रोफेसर कृतिका भाटे मेरे साथ है। मैम, आपने हाल ही में एक रिसर्च किया है खासकर स्मार्टफोन में लड़कियां क्या करती हैं और कितनी अवेयर हैं साइबर क्राइम को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, क्या कहता है आपका रिसर्च? मैंने साइबर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम अवेयरनेस पे लेके एक रिसर्च किया था जिसमें एमएस यूनिवर्सिटी की 167 जितनी लड़कियों ने भाग लिया था। इस रिसर्च के दौरान मुझे ये जानने को मिला है कि ज़्यादातर लड़कियां हैं जो स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप का सबसे ज़्यादा उपयोग करती है। टैबलेट है उसका उपयोग कम देखने को मिला है लड़कियों में। स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप ज़्यादातर पढ़ाई के लिए वो लोग यूज़ करते हैं और स्मार्टफ़ोन का उपयोग वो लोग चैटिंग के लिए करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए ज़्यादातर करते हैं, वीडियो कॉल्स करने के लिए करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए ज़्यादातर वो लोग स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते हैं। और ज़्यादातर वो दिन में 4 घंटे से ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करती हैं और कुछ लड़कियां हैं जो 2 घंटे से ज़्यादा कर रही है। तो 2 घंटे से ज़्यादा ही यूज़ देखने को मिला है इंटरनेट का लड़कियों के बीच में। इसके अलावा ज़्यादातर पूरे दिन में वो लोग स्मार्टफ़ोन का और लैपटॉप का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग उनमें सबसे ज़्यादा दिखा है और ज़्यादातर का काम यही है कि ऑनलाइन चैटिंग करना है या इंफॉर्मेशन सर्च करना है। पढ़ रही हैं तो अपने असाइनमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो लोग इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों में उनका उपयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। स्मार्टफ़ोन के फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप कम्युनिकेट तो कर ही सकते हैं, आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल, विदेश में बैठे हुए लोगों को भी आप बहुत नज़दीक महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी है। कई बार साइबर फ्रॉड जैसी चीज़ों का भी हम शिकार बनते हैं, खासकर बैंक अकाउंट में से लोगों के पैसे उड़ जाना या आपके फ़ोटोग्राफ का गलत इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें भी होती हैं और उनसे अवेयर नहीं होते हैं। मैम, आपकी जो रिसर्च थी उस पर ये भी सामने आया है कि साइबर क्राइम को लेकर और साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितना अवेयरनेस है लड़कियों में? जो मेरा रिसर्च है उसमें 50% लड़कियां हैं जिनको साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और 50% ऐसी हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जो बहुत खतरे की निशानी के जैसा हम कह सकते हैं। क्योंकि वो इतना, उनका इंटरनेट का यूसेज अगर इतना ज़्यादा है तो उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ और किस तरीके से सेफ़ हो सकते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया पे वो कैसे सेफ़ रह सकती है उसके बारे में उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन सर्च करती है तो अलग अलग ब्राउज़र्स का यूज़ करती है, तो वो ब्राउज़र्स सिक्योरिटी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तो ब्राउज़र सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत कम जानकारी लड़कियों में देखने को मिली है। तीसरा है पासवर्ड सिक्योरिटी। हर ऐप, अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो या जो भी आपके ईमेल अकाउंट्स हैं सभी में, इवन इन द जीपे ऑल्सो और पेटीएम, यू नीड टू एंटर द पासवर्ड्स।
तो ये भी देखने को मिला है कि ज़्यादातर लड़कियों ने सेम पासवर्ड का उपयोग किया है अपने सभी अकाउंट के लिए, जो भी एक बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि एक अगर पासवर्ड हैक होता है तो बाकी अकाउंट्स भी हैक होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो उनको ये पता है कि पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, 12 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, पर वो सभी के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो भी एक बहुत ही खतरे की घंटी जैसा हम कह सकते हैं। तो वो उसके बारे में उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और जो 50% लड़कियां हैं जिनको बहुत कम जानकारी है साइबर क्राइम और सिक्योरिटी के बारे में, उनके अंदर तो ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। साइबर क्राइम के भी बहुत सारे प्रकार है, उसमें भी सभी, जैसे फिशिंग है, तो लड़कियों को ये नहीं पता है कि उनका ईमेल हैक कैसे हुआ, हैक होता है तो क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि अकाउंट हैक हुआ है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उनमें नहीं है। हमने इस रिसर्च के अंदर अवेयरनेस सेशन भी कंडक्ट किया था, जो ऑनलाइन सेशन हुआ था। ये रिसर्च साइबर पीस फाउंडेशन झारखंड की जो है उनके साथ हमने मिलके ये किया है, और डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर अवनी मणियार मैडम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है इस रिसर्च में हमको ये सेशंस कंडक्ट करने के लिए, अवेयरनेस सेशन। और उस अवेयरनेस सेशन के दौरान लड़कियों ने यही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे हैं कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो फ्रॉड में फंस गई हैं, कैसे उनका अकाउंट हैक हो गया वो उनको कैसे पता चलेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करना ज़रूरी होता है किसी भी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक है, जो सिर्फ लड़कियों को नहीं सभी लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस उनके सबसे ज़्यादा आए, तो मुझे लगता है ये चीज़ों के बारे में उनके अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये गलती हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं कि हम एक ही पासवर्ड रखते हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड याद नहीं रहते हैं, हम कहीं नोट डाउन करके नहीं रखते हैं। जब भी हमें याद करना होता है हम एक आध पासवर्ड याद कर लेते हैं, और जब बदलते हैं तो बदल कर भी 1-2 पासवर्ड ही रखते हैं। ज़्यादातर हमारी बर्थ डेट हमारे पासवर्ड होते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर हमारे पासवर्ड होते हैं, और उन्हें हैक करना बहुत आसान होता है। कई बार सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हम अपलोड करते हैं उनका भी गलत इस्तेमाल होता है, और उसकी शिकायत कहाँ करनी, कैसे उसे रोकना, अकाउंट हैक हो जाए तो क्या करना, उसकी जानकारी भी हमें नहीं होती है। मैम, क्या रिसर्च में ऐसी भी कोई बात हुई है कि अगर आपके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हुआ या आपका अकाउंट हैक हो गया तो आप उसे कैसे रिकवर करें और आप शिकायत कहाँ करें? हाँ, ये भी जानने को मिला है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि अगर उनके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो उसका रिपोर्टिंग कब और कैसे और कहाँ किया जाता है। गवर्नमेंट का पूरा वेबसाइट है cybercrime.com, वहाँ पे वो लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन भी साइबर क्राइम है जहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पर वो उनको नहीं पता है। ज़्यादातर बच्चियों में या मुझे जो केसेस जानने को मिले उसमें ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा मिले कि शॉपिंग किया फेक साइट से, पैसे दे दिए पर प्रोडक्ट घर पे डिलीवर ही नहीं हुआ। तो इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। तो उनका फिर कहाँ पे, क्योंकि फेक वेबसाइट है, आप वापस सर्च करोगे आपको वो वेबसाइट दिखती ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो उनका कहाँ पे कंप्लेन करना है, किस तरीके से कंप्लेन करना है, उनकी जानकारी उनमें नहीं है। हमने जो ऑनलाइन सेशन लिया था उसमें हमने ये चीज़ें भी उनसे शेयर की थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, कौन है जो आपको इसके बारे में हेल्प कर सकता है या गाइड कर सकता है। तो ये जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। अगेन आई एम सेइंग द सेम कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स को, ये अवेयरनेस सभी में होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो आप कहाँ जाके उसका रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हो। घर बैठ के भी आप ऑनलाइन उसका रिपोर्टिंग कर सकते हो, कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो वो जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर कोई घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करता है, खासकर जो महिलाएं घर पर है, दिन भर फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं और कई बार उसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आपको काफ़ी भारी डिस्काउंट मिलता है और इसलिए ऑनलाइन पे करना लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे करने के बाद वो वस्तुएं नहीं मिलती हैं जैसा मैम कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई सी वेबसाइट से, किसी भी एप्लीकेशन से ख़रीदारी करते हैं, उनके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। रिव्यूज़ लिखे होते हैं जहाँ लोगों ने अपनी उनके साथ उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लिखे होते हैं कि ये फ्रॉड है या ये लोग सही टाइम पर डिलीवरी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको खुद को भी स्मार्ट
होना ही पड़ेगा। मैम, ओवरऑल इस रिसर्च में जो सामने आया है उसे लेकर अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए, आप क्या एडवाइस करती हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जो भी ये रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके ऊपर से मुझे ये लगता है, एक तो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस जनरेट करना ज़रूरी है। दूसरा, अवेयरनेस हम अवेयरनेस सेशंस करके भी कर सकते हैं, हम करिकुलम में भी उसको ऐड कर सकते हैं। एक कोर्स के दौरान या कोर्स के थ्रू भी हम उनको, शॉर्ट टर्म कोर्स हो सकता है, सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, जो उनको दिया जाए ताकि वो उससे सीखे और फिर समझ सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे बड़ा ग्रुप है, यूथ है। यूथ सबसे ज़्यादा हम देखते हैं इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, वेब सीरीज़, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस का यूज़ भी करते हैं। तो अगर यूथ जागरूक होगा तो वो आगे जाके बाकी लोगों को भी जागरूक कर सकता है। तो यूथ को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें सबको पता है, क्योंकि हम एड्स देखते हैं कि आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए, पिन, आपका कोई यूपीआई पिन है तो उसको शेयर मत कीजिए, पर ये बहुत ही बेसिक और सुपरफिशियल है। उसके अलावा भी बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारा इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं पढ़ाई के लिए। तो ब्राउज़र सिक्योरिटी क्या है, जनरल टिप्स क्या क्या होनी चाहिए, सोशल मीडिया सिक्योरिटी में क्या क्या होना चाहिए, पासवर्ड सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, वो जानकारी भी उनको होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज अ कोर्स हम उनको पढ़ा के सिखा सकते हैं। इवन इन द स्कूल ऑल्सो इट कैन बी इंक्लूडेड एज वन ऑफ द कोर्स और वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी वन कोर्स, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारा इंटरनेट और स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। तो पहले से ही अगर उनमें वो जागरूकता आए तो जब जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। सो जितना हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ने ही वाली है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बंद नहीं कर पाएंगे, उसका इस्तेमाल होने ही वाला है। तो ये अपनी ही जिम्मेदारी है कि हम उसको यूज़ करें, पर उसको सेफली कैसे यूज़ करें वो हम, हमारी जो भी जनरेशन है, नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसमें वो अवेयरनेस लाने की कोशिश हम करें, ताकि वो खुद भी अवेयर हो, खुद भी प्रोटेक्टेड रहें और दूसरे जो सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी हेल्प कर सके प्रोटेक्टेड रहने के लिए ऑन द डिजिटल मीडिया। मैम, क्या आपके रिसर्च में सोशल डेटिंग ऐप्स के बारे में भी आपने कोई रिसर्च किया था कि वहाँ भी बहुत लड़कियाँ फंस जाती हैं? ऐसा स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं था। आई हैव जस्ट आस्क्ड द सोशल मीडिया यूसेज एंड वेदर दे आर अवेयर अबाउट द सोशल मीडिया ऐप और नॉट। जी, ऐसा डेटिंग के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं पूछा था मैंने। जी। सोशल डेटिंग ऐप्स भी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जहां आप फंस सकते हैं। कई बार गलत रिलेशनशिप में भी लड़कियां चली जाती हैं और उससे परिवार को, समाज को बहुत सारी चीज़ें सहनी भी पड़ती है। ऐसे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल हर एक के लिए है बहुत अच्छा, लेकिन एक दोधारी तलवार जैसा है। साइंस को दोधारी तलवार कहा जाता है कि आप उसके फ़ायदे भी देखिए और आप उसके साइड इफ़ेक्ट को भी हमेशा ध्यान में रखिए, तो वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च की जो टॉपिक्स थे वो हमारे साथ साझा किए हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे भी चांस दिया कि मैं अपनी बात सभी लोगों के साथ रख सकूं, और मैं सबको यही कहूँगी, जितना चाहे आप इसको यूज़ करें, पर बी सेफ ऑन डिजिटल मीडिया। ये थी प्रोफेसर कृतिका भाटे, जिन्होंने अभी रिसर्च किया है साइबर क्राइम के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कि लड़कियां, खासकर एमएस यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं, यूथ है, बेसिकली यूथ किस तरह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने अवेयर हैं। और ना सिर्फ यूथ, अब सब लोग यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे किसी ना किसी तरीके की परमिशन मांग ली जाती है और जब वो परमिशन उन्हें मिल जाती है, अकाउंट हैक हो जाते हैं। इस तरह ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंटल लॉक भी होता है, चाइल्ड लॉक होता है, ऐसी चीज़ों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। यूथ बहुत स्मार्ट है, उन्हें सारी चीज़ें हैंडी मिली है, तो साइबर सुरक्षा कैसे होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ के रखनी चाहिए। अगर ना करें नारायण और आपके साथ भी कुछ गलत होता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा वीएनएम टीवी पर हमने उठाया है, और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि वीएनएम टीवी देखना ही इसलिए है क्योंकि यहाँ सीधे सीधे वही मुद्दे चर्चा किए जाते हैं जो आपसे जुड़े हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है
ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप खबरों के साथ साथ अवेयरनेस की बातें भी VNM टीवी के ज़रिए जानते रहे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। VNM ज़रूर देखते रहें। नमस्कार।